الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حاضرین گرامی اور سرزمین معدومی کے جید علماء کرام اور عزیز طلباء، ہمارے بڑے قریبی دوست، ہر مجلس میں ہمارے ساتھ رہنے والے، پیار و محبت کا پیغام دینے والے علی جناب بابا ستنام داس جی، دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال جامعہ منہاج السنہ کی طرف سے آزادی کی دھوم اور جشن کو منایا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی مدارس ہیں، جو ادارے ہیں، مکاتب ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، اور بہت سارے ہمارے برادران وطن جو ہے خوب جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دن کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ آزادی ہم کو ملی ہے بڑی مسقتوں اور آزمائشوں اور ابتلاء اور تکالیف کے ذریعہ، بڑی ساری قربانیوں کو پیش کرنے کے ذریعہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کے اتہاس کو، ہسٹری کو، تاریخ کو خوب پڑھیں۔ آج ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ اور اتہاس معلوم نہیں۔ لائبریریاں بڑی سے بڑی بنائی جائے، دنیا کے لوگ ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ امریکہ ایسا ملک ہے جس کے پاس سب سے بڑی لائبریری ہے، جس لائبریری میں 16,30,00,000 کتابیں۔ دوسرے نمبر کی لائبریری ان کے پاس برطانیہ میں ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اور آج ہمارا پڑھنا ختم ہو گیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر نے ہماری پورے اتہاس کو ختم کر دیا، زندگی اور صلاحیت کو نیست و نابود کر دیا۔ ہم ہی لوگ تو ہیں، برادران وطن کو، ہندو بھائیوں، جینوں، بدھسٹوں، سکھوں کو ملا کر کے اس ملک کو آزاد کرائے۔ یا یہ دو ہی لوگ تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا اور ملک آزاد ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ اور خون اور پسینہ دے کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ انگریز تو آئے 1498 میں، ایسٹ انڈیا قائم کر لی 1601 میں، پورا اس کی جدوجہد، اس کی شاطرانہ چال اور ہمیشہ دھوکہ دینے والی چال، لڑاؤ اور حکومت کرنے والی چال اس کے اندر تھی۔ سب سے پہلے جو لڑائی ہوئی، سب سے پہلے ہندوستان میں اگر کسی نے سمجھا ہے ان کی چالاکی کو، ان کی عیاری کو، ان کی مکاری کو، ان کی بدماشی کو اور تمام چیزوں کو، سب سے پہلا جس کو فہم و فراست ملے وہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تو وقت نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، پہلا آدمی جو اٹھتا ہے بنگال کی سرزمین سے، علی وردی خان۔ علی وردی خان سب سے پہلے 1754 میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور اس میں ان کو فتح نصیب ہوئی، لیکن انگریز پیچھے نہیں ہے۔
उसके बाद अली बर्दी खां के नवासे नवाब सिराजुद्दौला पलासी की जंग सबको याद है 1757 में, यानी 3 साल के बाद अपनों की गद्दारी की वजह से, अपनों की गद्दारी, यानी अंग्रेजों की फौज 13,000 है, नवाब सिराजुद्दौला की फौज 1,15,000 और शिकस्त हो रही है। किसकी वजह से? अपनों की। ये मीर जाफर जो था, ये सगा मामू था नवाब सिराजुद्दौला, जिसने अपने सगे भांजे की हिफाजत न करके अंग्रेजों से मिल गया और शिकस्त हुई। सब बड़े बड़े उसके सुपह सालार और लोग बिक गए। 1.25 लाख की फौज को अंग्रेज की 13,000 फौजों ने शिकस्त दी। चलती है। लोग तारीख में ये समझते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गलती, जो इतिहास लिखने वालों ये समझते हैं 1857 कि ये सबसे पहली जंग है। ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये तो वो जंग है कि बिरादराने वतन मिल करके उस वक्त सबसे पहले जो है एक मुत्तहिदा कुव्वत और ताकत कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके जो है इस देश को आजाद करा। नहीं, आजादी की लड़ाई तो अली वर्दी खान से ही शुरू हो गई। लेकिन अलमिया यह है कि हम इतिहास और तारीख को पढ़ते नहीं। बंगाल में कब्जा हो गया, उसके बाद बक्सर की जंग हुई और मैं सादिकपुर से जंग हुई। क्या किरदार अदा किया और मैं सादिकपुर ने, और उनके घरों पे बिल्डोजर चला दिया था अंग्रेजों ने, गधे चलाए गए थे। और वो जानते थे कि एक दक्कन में एक शेर मौजूद है, अगर वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद रहा तो अंग्रेज के नापाक कदम यहाँ नहीं जम सकते। जिनको दुनिया फतेह अली खान सुल्तान टीपू के नाम से जानती है, अगर वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे मौजूद रहा, अंग्रेज इस पर कब्जा नहीं कर सकता है। लिहाजा अंग्रेजों ने यह सोचा सबसे पहले उसको खत्म करना। तो बंगाल की सरजमीन पे कब्जा करते हुए इरादा किया दक्कन का, और दक्कन की तरफ चला। वहां भी मीर सादिक जैसा रईसुल मुनाफिकीन, अपनों से गद्दारी, और 1799 में सुल्तान टीपू की शहादत हुई। जो लोग सुल्तान टीपू के बुराइयां करते हैं, जो लोग टीपू सुल्तान को नहीं समझते हैं, वो भारत के दुश्मन है, इतिहास के दुश्मन है, तमाम मज़ाहिब के दुश्मन है। वो ये नहीं जानते तारीख कि अंग्रेज हिलते थे जिस वक्त उनकी शहादत हुई। अंग्रेज ने उनकी लाश पे खड़े होकर क्या कहा था? आज से मुल्क हमारा है। जिसने मुल्क की आजादी के लिए, इंडिया की आजादी के लिए, अपने मदर वतन के लिए, अपने लोगों की मोहब्बत के लिए, अपने लोगों की उल्फत के लिए, क्या सिर्फ यहाँ मुसलमान बचता था? ऐसा नहीं था, सबके लिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं, जिस वक्त सुल्तान टीपू भारत की सरजमीन पर मौजूद थे, उतना बड़ा कुतबरा अफगान भारत की सरजमीन पर नहीं था। लोग उनका मजाक उड़ाते। जिसने ये कहा कि इधर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी। आजादी ऐसे नहीं मिली, बड़ी मेहनतों, बड़ी कुर्बानी। उसके बाद जो है 1799 में 3-4 साल लगे, दिल्ली पर कब्जा हो गया। अंग्रेजों का दिल्ली पे कब्जा हो गया और 1803 में ऐलान हो गया ये मुल्क हमारा। सबसे पहला जो उस वक्त फतवा दिया गया, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कि जो मुजद्दिद अल-बहसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मसाई
कुर्बानियां दी थी, उनके खुतूत पर चलते हुए अपने आप को लगाया शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। और आपके दुनिया से जाने के बाद आपके जानती, आपके फर्जंद अर्जमंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान मुअर्रिख कहें तो बात मानी जाएगी, हिंदू मुअर्रिख भाइयों ने लिखा है कि अगर शाह अब्दुल अजीज देहलवी का फतवा ना होता तो हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। वो बोरिया नशीन, वो मदरसे में पढ़ाने वाला, वो टोपी बोरियों पे बैठने वाला, वो मदरसे का नादिम, वो मदरसे का मुहतमिम, वो मदरसे का मुहद्दिस, और वो कहता है कि ये दारुल हर्ब हो चुका है, लिहाजा अब अंग्रेजों से लड़ाई बहुत जरूरी है। क्या हुआ? उनकी जायदाद कुर्ब कर दी गई, उनको परेशान किया गया, लेकिन वो हारे नहीं, वो पीछे नहीं हटे। देखिए मेरे अजीजों, मैं ये कहता, दुनिया क्या कहती मैं नहीं जानता, लेकिन दुनिया अगर करती है तो सिर्फ हमारे इस देश की, आपकी इस देश में करती है। उनको कुछ नहीं लेना देना जो मॉडर्न जमाने की तरफ चल रहे हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना जो इस्लाम का सिर्फ लबादा होके चल रहे नहीं। आप अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी कौम की अच्छाई के लिए क्या कर, ये उनको डर है, ये उनको डर है। बड़ी कुर्बानियों के बाद देश आजाद, ऐलान हो गया, और आपके ऐलान में आपके शागिर्द, आपके मुंतसिबीन, आपके मुतअल्लिकीन, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इतिहास में पढ़ा, जितना सफर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, शायद कोई आलिम इतना सफर किया हो पूरे हिंदुस्तान में। चप्पे चप्पे पे उनका इस्तेमाल, चप्पे चप्पे से लोग उनसे मिले, और क्या कि अपने के लिए नहीं, मुल्क की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत की हिफाजत के लिए, और यहाँ के तमाम मज़ाहिब के लोगों की हिफाजत के लिए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं खड़े थे, मुसलमान जगह आजादी जो कर रहे थे सिर्फ अपने लिए। हाँ, ये जरूर था कि 1754 से लेकर के 1857 तक तने तनहा मुसलमानों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं। वजह यह थी कि मुल्क जो है मुसलमानों के हाथ में था, ताकत मुसलमानों के हाथ में थी, और मुसलमानों के हाथ से हुकूमत जा रही थी। उसमें जो सबसे पहला शोर अंग्रेजों को भापा, मुसलमानों ने भापा। ये इतिहास है, ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है, ये इतिहास है। ये लोग खड़े हुए, और 1831 में बालाकोट की जंग में अंग्रेज और उनके जो इत्तेहादी थे, उनसे जंग हुई। सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल ने, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग शहीद हो गए। उसके बाद में मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, 1857, तारीख तो बहुत लंबी है, 1857, ये याद कर लें कि 1857 भारत की पहली जंग आजादी नहीं है, और इसको कोई मिटा भी नहीं सकता है। कितना कोई इतिहास पूरा तोड़ मरोड़ के लिख दे, पता नहीं होता। तारीख होती है, और जो कौम अपनी तारीख को याद करती है, अपने असलाफ को याद करती है, अपने मादी को याद करती है, वो कभी गुलामी की जंजीरों में नहीं आती है, बल्कि अगर सही तरीके से उनके नक्शे कदम पे चले तो अल्लाह ताला कामयाबी और कामयाबी के रास्ते को खोल देता है। 1857 में दिल्ली में 3 दिन जंग हुई अंग्रेजों से। दिल्ली में 3 दिन जंग हुई, और उस वक्त बादशाह बहादुर शाह जफर ही थे, उनकी क़यादत थी, और 29,000 हिंदुस्तानी शहीद हुए। 29,000, जिसमें 24,000 मुसलमान थे और 5,000 हिंदू भाई। ये पहली जंग थी जब हमारे हिंदू भाई जो उसमें शरीक हुए। 1857, ये बहुत बड़ा, 5,000 की तादाद बहुत बड़ी होती है।
اور 24,000 مسلمان شہید اور 3 دن کی لڑائی کے بعد ظاہر سی بات ہے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو بھی شہید کر کے جو ہے ناشتے میں پیش کر دیا گیا ان کے سر کو. اتنا آپ ہی بتائیے جس کی اولاد کے سر کسی باپ کے سامنے آ جائے لگتے جگر کے سر آئے اور پھر دنیا ہم کو یہ کہے کہ آپ کا بھارت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم آپ سے یہی بات پوچھ لیں کہ آپ کا کیا کردار ہے اس ملک کی آزادی میں تو کیا ہوگا؟ یہ بوریاں نشین نہ ہوتے. ذمہ داری اس کو آج بند کرنے کی تدبیریں چل رہی ہیں, طاقتیں لگائی جا رہی ہیں, قانون بنائے جا رہے. یاد رکھیے جس دن یہ مدارس انڈیا سے ختم ہوئے انڈیا کے نیست و نابود کر دیں گے لوگ. یہ حفاظت ہے انہی مدارس والوں سے. بتائیں کوئی آ کر کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت اچھے متر بہت اچھے دوست مدرسوں میں بھی جانا دوسری جگہ دیکھتے ہیں آخر کیا پایا جاتا ہے ان کے پاس کیا ہے اتنا بھی برداشت نہیں. ہم تہیا کریں پیسہ ہمیں ملے نہ ملے روپیہ ہمیں ملے نہ ملے جب تک جیتے رہیں گے دین اسلام پر اپنی زندگی گزاریں گے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من جان سب کچھ قربان کر دیں گے. یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے. جو اس ملک سے محبت نہ کرے وہ غدار ہے. اور غدار وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرست ہے جو لڑاتے ہیں جو انگریز نے جو کہ لڑاؤ اور حکومت کرو وہ انگریز کی اولاد ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعہ لوگوں کو پیغام دیں. میرے اندر کتنا ایمان ہے کوئی دیکھنے نہیں ہے, اخلاق میرا کیسا ہے, میری عملی زندگی کیا, وہ باہر کے لوگ مجھے دیکھیں گے. ایمان کتنا ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا, وہ اللہ جانتا ہے وہ بندہ جانتا ہے. ہمیں چاہیے 1857 کی پہلی جنگ آزادی یہ سمجھنا غلط ہے, بالکل غلط ہے. اتہاس نہ جاننے جاہل پر ہے. اب آپ لوگ اس کو قدر بھی کہہ دیتے ہیں. یہ قدر نہیں ہے, یہ تو اپنے زمین کی حفاظت کے لیے لڑنا تھا. قدر کیسے ہوتا ہے؟ مختصر میں کر رہا ہوں. اور شاملی کے میدان میں جو جنگ لڑی گئی علماء دیوبند کھڑے, علماء دیوبند. یہاں کوئی مسئلے کی بات نہیں, جب لڑے ہی ہو رہے تھے تو وہی علماء دیوبند کا نام آئے. کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. کون ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی. کون ہے؟ مولانا عبدالرشید گنگوہی. کون ہے؟ حافظ عامر شہید. میں نے جگہ دیکھی ہے جہاں پہ مشورہ اللہ کا ان کا, میں نے وہاں پہ یعنی گیا ایک مرتبہ تو دارالعلوم میں مولانا سفیان صاحب دعوت برکاتہم عالیہ اور بہت سارے مظاہر کے ذمہ داران سب لوگ تھے. تو وہ چیزیں دکھائی گئی جو وہ استعمال کرتے تھے. یعنی 1857 کی جنگ آزادی میں کیا پہنا تھا, کیا کھا رہے تھے, کیسے کرتے, وہ میں نے دیکھا. تو انہوں نے قربانی دی اور قربانی دینے کے بعد ہی ملک آزاد ہوا. ایسے آزاد نہیں ہو گیا, بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے. 1857 کے بعد تمام 18 سے شروعات ہوئی. ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جینی تمام برادران وطن نے مل کر کے جدوجہد کی, قربانی دی, پیش کی, جانوں کا نذرانہ پیش کیا, تب جا کر کے ملک آزاد ہوا. ہم صرف اکیلے تھے ایسا نہیں. ہم تو اکیلے تھے جب 1754 سے 57 تک, 1857 سے لے کر کے اس کے بعد جو ہوئی تو سب مل کر کے جنگ آزادی کو لڑا. یہ ملک آزاد ہوا, یہ ملک آزاد ہوا. اسی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے, جو ہماری روح ہے, جو ہماری جان ہے, جو ہماری عزت ہے. وکابرین نے اس ادارے کو قائم کر کے کہ اس ملک سے کالے انگریزوں کو, گورے انگریزوں کو نکالا جائے, جن کے کرتوت کالے ہیں, چمڑی گوری ہے. اور کیا سب سے پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب و فرقہ پرست
ये सोच लेते कि दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिब इल्म मुल्ला महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? जिस तरह दारुल देवबंद की इल्हामी बुनियाद है, उसी लिहाज से पहला तालीमी इल्म भी जो लाया गया है वो अल्लाह की तरफ से है कि ऐसा जज्बा रखने वाला, ऐसा हौसला रखने वाला, ऐसी क़यादत करने वाला, ऐसी जो है अंग्रेजों के लिए क़यामत बर्पा करने वाला, ऐसे ही की जरूरत है। अंग्रेज बहुत डरता था, बहुत डरता था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस पर बात की जाए तो बड़ी लंबी होगी। 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। उनके पहले तालिब इल्म ने हिंदुस्तान की तहरीक, रेशमी रुमाल तहरीक जो है चलाई, और अपने गद्दारी की वजह से वो भी जो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज दारुल उलूम देवबंद के तलबा ही ने जो वहां से फैज हासिल किया, जो वहां से पढ़े, एक जिला वतन हुकूमत कायम की। कहां? अफगानिस्तान के अंदर। लोग हमसे पूछते हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आप इंडिया से मोहब्बत करते हैं कि नहीं, आप हिंदू भाइयों से मोहब्बत आप बताएंगे हमें। हम लोग इतने दिनों से चल रहे प्यार और मोहब्बत के साथ। बाबा सतनाम दास जी का जो फूल लाल है वही असलम का भी लाल है, कोई अलग नहीं है। एक ही माता पिता की संतान, कोई अलग नहीं। तो अफगानिस्तान में जिला वतन हुकूमत जो बनाई गई मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है पहले सदर, और मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली रहमतुल्लाह अलैह पहले वजीर आजम। अगर ये दिल में होता है कि हमें हिंदू भाइयों से मोहब्बत नहीं है, तो हिंदू भाई को कैसे हम सदर जमहूरिया बना देते? ये प्यार और मोहब्बत। और देखिए ना, आप हजरात से कह रहे, आप यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक इस पर ना जाइए, आप अपने आप को बनाइए, और जो सच्ची मोहब्बत हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क की मिट्टी से की है वो हमारी जिंदगियों में व्यवस्था होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे और ना हमारा कोई कुछ कर सकता है। जैसे बाबा जी ने कहा कि अगर हम जो सच्चे मुसलमान बने तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हकीकत है इस मुल्क में जितना नफरत करने वाले हैं उनका अंजाम बुरा ही हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अंग्रेज इतना मजबूत होकर के चला गया, खत्म हो गया, किसको नाबूद हो गया, उसकी हुकूमत खत्म हो गई, तो अंग्रेज के दलाल कब तक रह सकते हैं? लिहाजा हमें चाहिए कि हम कोई भी हमारे खिलाफ बोले, हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देंगे, उल्फत का पैगाम देंगे, जज्बात में नहीं आएंगे। फेसबुक और ट्विटर पे कोई कह रहा है कहने दीजिए, उसकी पहुंच वहीं तक उसको पहुंचने दीजिए। नहीं, हमें हद है। मेरे पड़ोस में हिंदू भाई है, उसका मानो सम्मान होना चाहिए। मेरे पड़ोस में सिख भाई है, उसका मानो सम्मान होना चाहिए। हम एक माता पिता की, जिसको जो मजहब प्यारा था उसने उसको कबूल किया। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के साथ जिंदगी गुजारेंगे। आप दूसरे मजहब से, उनका वो मजहब उसके लिहाज से। यही तो खूबसूरती है इस मुल्क की। हमारा इस्लाम कभी जो है जुल्म का करने को नहीं कहता, और न किया है। हम मुसलमान हैं, जहां भी रहे अमन शांति रहनी चाहिए। वो मोदी मीडिया है, हमको इधर से उधर बहकाती रहती है, इधर उधर जो है वावैले मचाती, उसका उनका भी अंजाम आखिर में बुरा होता है। लिहाजा हम सबसे पहले मैं मुफ्ती अंसार साहब कासिम दामद बरकातुहुल आलिया और मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम तलबा ने जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर नज़्म जो पेश की, बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश की। और मेरी दुआ अल्लाह ताला जो है इस मदरसे को क़यामत कबूल फरमाए, और आप तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और मुझे कभी उम्मीद है कि इससे ऐसे जाले भी पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला, और हुए भी होंगे जो इस मुल्क की मोहब्बत की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क में अमन और शांति का पैगाम दुनिया को देंगे और पहुंचाएंगे। जहां नफरत होगी, नफरतों को खत्म करके मोहब्बत को आम करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम हजरात को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
کوئی سے گناہ میں غلط روایات پیش کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.